Hello everyone. Now it's time for VE. Today we will do chapter number 9. But before starting the chapter number 9, I want to share you something with you that you have to listen and follow that things. First one, we have to respect our family. In our family, father, mother, grandparents, we all are staying all together and we should respect to each other. But you are the youngest person in the family, so you have to respect each and every person. Now here we will see about respect your mother. When mother is tired or sick, don't expect her to do things for you. Don't ask her for help. Instead, say, how can I help you, mother? अगर आपकी मम्मी थकी हुई है या तो बीमार है तो आप उनसे ज्यादा काम न करवाए और उनको हेल्प के लिए भी नहीं बोले पर उस उल्टा आपको उनको आपकी मम्मा को बोलना है कि मम्मा मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ. सो यू हैव टू हेल्प टू योर मदर. एज यू नो योर मदर इज वर्किंग फॉर द होल डे. पूरा दिन वो काम करते रहती है तो यू हैव टू हेल्प योर मदर. You should not say, Mama, I want this, I want that, but you have to help to your mother. Same way, you have to help to your father also. When father asks you to do something, listen to him, don't argue. अगर आपके पापा आपको कुछ भी करने को बोले तो उनकी बात सुनना चाहिए और डोंट आर्ग्यू मतलब उनके सामने कुछ बोलना नहीं चाहिए. वो जो बोले वैसे कर लेना चाहिए. Here it is written, enough of TV Rahul, get back to your books now. So, what you have to say? Sure, father, then you have to go to the study. So, whatever your father is telling to you, you have to listen to them and you have to do whatever they want to do with you. Okay, and then respect your grandparents. Your grandparents are older than your parents. They love and care for you. Do things for them, fetch and carry things for them, spend time with them. See, our grandparents, they are older than our parents also. So we have to love and care for them. And whatever they want your help, you have to help them. उनको आपसे जो भी हेल्प चाहिए वो आपको करना चाहिए. उनके लिए मेडिसिन देना हो, उनको कुछ भी जो चाहिए तो वो सारी चीजें उनको ला के देना है और उनके साथ बैठ के बहुत सारा समय उनके साथ बिताना है ताकि उनको भी अच्छा लगेगा. एंड यू हैव टू केयर फॉर देम. देन लास्ट वन, रिस्पेक्ट योर पेट्स. इफ देर इज एनी पेट्स, if there is any pet at your home, then you have to care for them also. Your pets depends on you. Don't forget to feed them. आपका जो पेट है आपके घर में तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है तो उसको खाना खाने का या दूध पिलाना जो भी उसका होता है तो वो आपको करना चाहिए. So these are the things that I want to tell you and you have to listen to these also. Even you have to follow these also, that you have to respect your family members like father, mother, grandparents and your pets. Now we will go to the next chapter. Now we will read the story about being different. You are on the bus and you see a child of your age. His skin is very white, his hair is almost white too, his eyes have no color. He looks very different from everybody else because his body cannot produce a color for his skin, hair or eyes. Is he really very different from you? You just looks different but like you. He goes to school. He can run and play just like you.
His mother too encouraged him to be good and kind, just like you. He is taught to be helpful and caring because that is what matters. अगर आप कहीं जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर है कि आप बस में जा रहे हो और आपके साथ एक बच्चा है जो आपकी ही एज का है, पर उसकी स्किन पूरी वाइट है, उसके हेयर भी ऑलमोस्ट वाइट वाइट ही है, उसकी आंखों में कोई कलर नहीं है, तो वो सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि उसकी जो स्किन थी, उसकी स्किन में से मतलब कोई कलर नहीं था, तो वो हम सबसे अलग था। तो क्या वो आप लोगों से सही में अलग है? अगर आप देखो तो वो भी आपकी आपकी ही तरह स्कूल में आता है, जाता है, सब लोगों से मिलता है, सबसे खेलता है, जैसे कि आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। उसकी मम्मा भी उसको एनकरेज करती है बहुत अच्छा इंसान और इंसान बनाने के लिए, और उसको हेल्पफुल बनने के लिए, केयरिंग बनने के लिए भी उसकी मम्मा उसको सिखाती है, समझाती है, जैसे कि आपकी मम्मा भी आपको सिखाती है। मतलब और कोई तरीके में वो हमसे अलग नहीं है, बस सिर्फ ये है कि सिर्फ वो दिखने में अलग है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर वो कैसा है, वो हेल्पफुल है, काइंड है, तो हमें उसको अगर वो हमारी तरह है तो हमें भी उसके साथ, हम बाकी दोस्तों की तरह ही उसके साथ बिहेव करना चाहिए। नाउ लेट्स रीड अबाउट अ बर्ड हु वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड वॉट हैपन टू हिम। अब यहाँ पर एक बर्ड की स्टोरी है कि जो सबसे अलग दिखता है, तो फिर उसके साथ क्या होता है, उसके बारे में हम ये स्टोरी देखेंगे। द पिजियन एंड द फाल्कन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाल्कन? फाल्कन यानी कि बाज पक्षी होता है, जो दिखने में थोड़ा बहुत पिजियन जैसा दिखता है, पर कुछ डिफरेंट होता है उसमें। नसरुद्दीन वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्सिया। One day, while walking through the royal courtyard, he saw a falcon. Nasruddin was surprised. He had never seen a falcon before. This bird looks very different from the pigeons in the royal court. The falcon's claws were big, sharp, and curved. Its wings were much larger and darker than that of a pigeon's. Its beak too was sharper and more powerfully curved than a pigeon's beak. नसरुद्दीन की जो पर्सिया का प्राइम मिनिस्टर था, तो वो जब एक दिन अपने कर्टियार्ड में जब वॉक कर रहे थे, उसी समय उसने फाल्कन को देखा। फाल्कन यानी कि बाज पक्षी को देखा, तो उसको देख के उसको आश्चर्य हुआ। उसने कभी ऐसा पक्षी देखा नहीं था, तो उसको लग रहा था कि ये बर्ड तो बिल्कुल अलग लग रहा है फ्रॉम द पिजियंस इन द रॉयल कोर्ट। या जो सारे पिजियंस है उससे ये थोड़ा अलग लग रहा है। उसके जो क्लोज थे, उसके जो पंजे थे, वो बहुत बड़े और शार्प थे। उसकी विंग्स थी, वो भी बहुत बड़ी थी, और मतलब वो पिजियन की होती है उससे भी काफी बड़ी थी। और उसकी जो बीक यानी कि चोंच थी उसकी, वो भी बहुत शार्प थी और पावरफुली कर्व्ड देन अ पिजन, जैसे कि वो पिजन की होती है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुली कर्व्ड थी और शार्प थी। ओ डियर, thought Nasruddin, why is this bird so different? I must make it look like the others. फिर नसरुद्दीन ने सोचा कि ये बर्ड क्यों सबसे मतलब जो पिजन्स है सारे उससे अलग है, मुझे उसको सारे पिजन्स जो है उसके जैसा ही उसको बनाना है। So he took a knife and trimmed the falcon's claws till they were small like a pigeon's toes.
फिर उसने क्या किया कि नाइफ से जो फाल्कन यानी कि बाज पक्षी के जो क्लोज यानी कि पंजे थे उसको नाइफ से कट करके जैसे कि पिजन के टोज होते उतने छोटे कर दिए. Then he clipped the falcon's large wings and he also scraped the beautiful beak until it was blunt and no longer curved. फिर उसने जो उसकी चोंच थी उसको भी कट के मतलब एकदम छोटा सा कर दिया और कर्व्ड जो था वो भी नहीं वो भी उसने काट दिया. Now you look more like the others, he said. फिर उसने सोचा उसके क्लोज और जो बीक थी वो काट के फिर उसने सोचा कि अब तुम ये पिजियन जैसे लग रहे हो मतलब यू लुक मोर लाइक द अदर्स तुम भी अलग मतलब जो दूसरे पिजियन से उसके जैसे भी अब तुम लग रहे हो अब तुम सबसे अलग नहीं हो. Nasruddin was very pleased with his work. But do you think the falcon was happy? नसरुद्दीन ने जो भी किया उससे वो तो बहुत खुश था पर क्या ये जो फाल्कन बर्ड था क्या वो खुश था? It could not tear meat without its sharp claws and curved beak. अगर अब उसकी जो बीक थी उसकी जो चोंच थी उसको एकदम ब्लंट कर दिया था तो अब वो खाना नहीं खा सकता था क्योंकि उसको खाने के लिए मीट चाहिए होता है तो वो अगर उसकी जो चोंच है वो शार्प नहीं रहती है तो वो नहीं खा सकता है. इट कुड ओनली पिक एट ग्रेन so it remained hungry all the time. It became thin and weak and could not fly as high as it had done before. It suffered and all because Nasruddin wanted to make a falcon look like a pigeon. फिर उसके जो पंख थे वो भी उस काट दिए थे तो अब वो पहले की तरह ऊपर बहुत ऊंचाई तक अगर उसको उड़ना है तो वो नहीं उड़ सकता था और उसकी चोंच भी बहुत ब्लंट हो चुकी थी तो वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता था तो वो भूखा रहता था तो मतलब वो बहुत सफर कर रहा था और वो किसके लिए नसरुद्दीन की वजह से वो भूखा रहता था उसको वो अच्छे से ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता था उसका रीजन क्या था बस वही कि वो जो नसरुद्दीन था उसने उसका ये जो सारे पंख और टोज और क्लोज वो सब काट दिया था उसकी वजह से और नसरुद्दीन को ये उसको फाल्कन को पिजियन की तरह ही बनाना था इसलिए उसने ये सब काट दिया था जिसकी वजह से अब वो ऊपर तक उड़ नहीं सकता था और ना ही कुछ खा सकता था. So this is the very small story and in this story what we had seen sometimes we too are like Nasruddin. कई बार हम लोग भी नसरुद्दीन जैसा करते हैं. When we see that someone is different from us we do not understand him or her. मतलब कोई अगर हमारे जैसा नहीं है तो कभी हम उसको समझते नहीं हैं. Each one of us is different. हम सब लोग अलग अलग है. We have different skin color एंड हेयर. सबके स्किन अलग अलग होती है कोई गोरा होता है कोई काला होता है कोई सबके मतलब लुक्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं सब सब कोई छोटा होता है कोई मोटा होता है कोई दुबला होता है या पतला होता है. वी आर डिफरेंट साइजेस वी हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सबकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है. वी ड्रेस डिफरेंटली ईट डिफरेंटली eat different types of food and speak different languages. It is good to be different. सबकी अलग अलग भाषा है सबका फूड अलग अलग होता है और सब लोग के जो पहनावे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और सबकी जो भाषा होती है वो भी अलग अलग होती है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट आवर लुक्स डू नॉट मैटर. हमारा जो लुक्स होता है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है. We should respect differences and remember that we all have feelings. हमें एक दूसरे की पसंद और नापसंद को का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हमको भी कभी अच्छा या बुरा लगता है तो उसी तरह सबको ऐसा लगता है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स चॉइस. हमें दूसरों की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना होता है. So this is the very short story. I hope all of you understood and after watching this video you have to read this chapter from the textbook and I will send the question answer in the PDF.
Thank you and have a nice day.